Hello everyone, I am Dr. Jigar Agarwal, Associate Professor at JG College of Commerce, and today I am going to solve some questions from the Gujarat University 2019 question paper for first year BCom semester 1. Let us take up another example from the chapter of branch accounts. This is again from the Gujarat University 2019 question paper. ये ब्रांच अकाउंट का इजी सेक्शन है और देखो तो 14 मार्क्स है, सो आप कह सकते हो कि दिस इज कैश क्रॉप, pretty easy to score in the shortest possible time. So I'm sure आपको मजा आएगा और आप सीखोगे भी. चलो एग्जांपल देख लेते हैं. ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है. पढ़ो सम को. Prayas Traders of Porbandar has an independent branch at Navsari. The trial balance of the branch as on 31st December 2018 is as under. Let's look at the debit balances. क्या है? Debtors, stock, purchases, rent, taxes, salary and office expenses. These are all expenses. Bank balance and fixed assets. These are all balance sheet items essentially. Head office account, it is just like a capital account. आप जानते हो ना कि ब्रांच अकाउंट में, पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट ब्रांच में, हेड ऑफिस अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट. ये कभी कभी एमसीक्यू आता है यूनिवर्सिटी में. यह नहीं पूछा था 2019 में, लेकिन बहुत बार पूछते हैं that in the branch accounts or in case of an independent branch, head office account is like which account? तो head office account is just like the capital account. ठीक है, it's a normal capital account. सिर्फ नाम है हेड ऑफिस अकाउंट. क्रेडिटर्स, सेल्स आप रिकॉर्ड करोगे ट्रेडिंग में और कमीशन आपकी इनकम है. लेट्स गो थ्रू क्विकली गो थ्रू द एडजस्टमेंट्स. स्टॉक दिया है. स्टॉक ऑन द लास्ट डे, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक 40,000. द फर्नीचर अकाउंट ऑफ द ब्रांच इज टू बी मेंटेन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. यानी ब्रांच के बुक्स में नहीं आएगा. हम कौन है? हम ब्रांच है. हमारे बुक्स में ब्रांच फर्नीचर नहीं आएगा, लेकिन वी आर यूजिंग द फर्नीचर. So since we are using the furniture, we'll have to bear the depreciation. So 4,000 is to be written off as depreciation on the furniture of the branch. Head office had sent goods worth rupees 25,000 to the branch, which is not received by. So this is essentially cash in transit, not goods in transit, not received by branch up to 31st December 2018, जिसको हम बोलते हैं goods in transit. You must be knowing this. And the last is the cash remittance of 20,000 by branch to head office on 28th December 2018 was received by head office on 2nd January 2019. Yani this is nothing but cash in transit. Cash was sent by us to head office, but the head office did not receive it till the end of the year. Yani ye cash in transit ka transaction hai. And you have to, from the above particulars, you have to prepare the final accounts of 2018 in the books of the branch. This is the question copied from the question paper. That's why it has been copied here as it is printed in the question paper. तो आपको बनाना क्या है? फाइनल अकाउंट्स में आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, नवसारी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st December 2018. उसके बाद आपको बनाना है नवसारी ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st December 2018. हेड ऑफिस अकाउंट, ये बेसिकली है कैपिटल अकाउंट. दिस इज नथिंग बट जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट. डन. एंड फाइनली you have to prepare Navsari branch balance sheet as on 31st December 2018 with both the sides assets and liabilities. So let us start recording. बहुत easy sum है. Let us pick up the debit balances first. Debtors, तो आपके डेटर्स कहाँ जाएंगे? डेटर्स जाएंगे बैलेंस शीट में. तो डेटर्स यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख देते हैं. डेटर्स यहाँ पे आएंगे. असेट्स में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आएंगे असेट साइड पर डेटर्स. ठीक है. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स? 80,000. तो यहाँ पे आएंगे डेटर्स 80,000. डेटर्स 80,000. ऑल राइट. लेट्स गो बैक टू द ट्रायल बैलेंस. और क्या है ट्रायल बैलेंस में? यू हैव ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक 30,000. ओपनिंग स्टॉक कहां रिकॉर्ड करोगे आप? ट्रेडिंग में. तो ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे डेबिट साइड पर टू ओपनिंग स्टॉक. टू ओपनिंग स्टॉक. करेक्ट. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक? 30,000. और परचेजेस भी हैं उसके साथ. सो ओपनिंग स्टॉक 30,000
ऑलराइट। और परचेज भी कहाँ जाएंगी, परचेज भी ट्रेडिंग में डेबिट होगी, तो परचेज भी यहाँ पे मैं ट्रेडिंग में डेबिट कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा टू परचेजेस। कुछ है परचेज रिटर्न या कुछ भी, देयर इज नो परचेज रिटर्न, सो स्ट्रेट अवे इन द आउटर कॉलम परचेजेस विल बी 2 lakhs. डन। नाउ व्हाट एल्स, परचेज हो गया। नाउ वी हैव 3 expenses, rent, taxes, salary and office expenses. All the 3 expenses will be debited to profit and loss account. आप जानते हो these are all ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो यहां पे डेबिट हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, यहां पे आएगा टू सैलरी, सैलरी सॉरी पहला क्या है, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 25, 40 एंड 70। तो लेट्स रिकॉर्ड द एक्सपेंस इन द सेम ऑर्डर। यहां पे आएगा रेंट एंड टैक्सेस, ऑलराइट, रेंट एंड टैक्सेस, that amount is 25,000 and salary is 40,000. So rent and taxes 25,000 and salary 40,000. Alright. There is one more. Office expense again is to be debited to profit and loss account. तो यहाँ पे आएगा office expense, office expense 17,000. Done with the 3 expenses, they have been debited to profit and loss account. Next comes bank balance, जो कि balance sheet item है, और fixed assets. Both are your assets. So bank balance 18,000 and fixed assets 50,000. They will be shown in the balance sheet. So let's go to the balance sheet, final balance sheet, और यहाँ पे आएगा fixed assets, और bank balance, right? And the amounts are 50 and 18. The amounts are 50 and 18. So 50,000 and bank balance is 18,000. So we have recorded the debit side of it. Yes. Now let's move to the credit balances. सबसे पहला क्या है, हेड ऑफिस की ओपनिंग बैलेंस है 1,09,000, तो हेड ऑफिस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $1,09,000. Done. So we have essentially recorded the opening balance of capital, which here is mentioned as head office account. Now creditors 45,000, that is your liability. So again go back to final balance sheet और लिख दो यहाँ पे creditors 45,000, जगह छोड़ना कैपिटल की जगह, और यहाँ पे हम लिखेंगे creditors 45,000, creditors 45,000. Now next क्या आएगा, sales and commission. Sales 3 lakhs will be shown in the trading account on the credit side. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सेल्स 3 lakhs, और कमीशन जाएगा 6,000, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे क्योंकि आपकी इनकम है तो बाय कमीशन, commission 6,000 being an income credited to profit and loss account.
So now we are done with the trial balance. It is so easy, not at all time consuming and straightforward. Now let us take up the first adjustment. Let us take up the first adjustment, which is about closing stock. Closing stock is 40,000. So you know where do we record the closing stock? एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, और दूसरी इफेक्ट वो कहाँ जाएगी? आपकी बैलेंस शीट में जाएगी. तो ट्रेडिंग में यहां पे लगा दो, यहां पे बाय, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक. यहां पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, by closing stock, and the amount is 40,000. By closing stock amount is 40,000. Done. And the other effect बैलेंस शीट में यहां पे closing stock 40,000. Okay. Having recorded closing stock, let's move to the second adjustment. What is the second adjustment? The furniture account of branch is to be maintained in the books of head office. यानी हमारे बुक्स में फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं होगा. और ये रिकॉर्ड कहां होगा? वेयर विल यू रिकॉर्ड इट? यू विल हैव टू रिकॉर्ड दिस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, जो हम नहीं बना रहा है. सो वी आर रिकॉर्डिंग दिस इन द बुक्स ऑफ ब्रांच अकाउंट. तो ब्रांच में फर्नीचर नहीं आएगा, बट वील हैव टू अकाउंट फॉर द डेप्रिसिएशन which stands for the use of furniture. हमने फर्नीचर यूज किया तो हमें उसका डेप्रिसिएशन बेयर करना पड़ेगा. तो डेप्रिसिएशन कितना है? 4,000. कहां जाएगा? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, दैट इज योर नॉर्मल रिकॉर्डिंग. तो यहां पे आ जाएगा डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. ऑलराइट. और कितना है डेप्रिसिएशन? कितनी अमाउंट है? 4,000. so that will be debited to profit and loss account. Done. And second, यहां पे हमारे पास असेट तो है ही नहीं, we don't have that asset. so वरना नॉर्मली हम क्या करते थे? बैलेंस शीट में असेट्स में से माइनस करते थे. लेकिन ये असेट किसके पास है? वी आर यूजिंग दिस असेट विच इज ओन्ड बाय हेड ऑफिस. तो उसको हमें क्रेडिट देनी पड़ेगी हेड ऑफिस को. तो यहां पे हम लिखेंगे, क्योंकि फर्नीचर बिलोंग्स टू द हेड ऑफिस एंड इट इज मेंटेन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. तो यहां पे हमें क्रेडिट देनी पड़ेगी, और हम यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और अमाउंट आएगी 4,000. डन. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एडजस्टमेंट, विच इज अबाउट व्हाट? Head office had sent us goods worth rupees 25,000 to the branch, which were not received by the branch up to 31st December 2018. So हमें अब तक ये goods मिले ही नहीं है. So they have sent us goods. Who are they? Head office. Head office has sent us goods, but the goods, we are not in receipt of the goods. तो ये हमारे लिए तो ट्रांजेक्शन हुआ ही है ना. No transaction has taken place for us. हमारे लिए कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है. तो this is nothing but goods in transit, right? So there will be no entry for it. So no entry for this, because this is nothing but goods in transit. So let's move to the last one. There will be no entry for the third one, because it is about goods in transit once again. So now let us see. Let's go through the last one. The cash remittance of 20,000 by branch, yani hum. We sent cash of 20,000 to head office on 28th of December 2018. हमने 3 दिन पहले ही 20,000 की कैश भेजी. आज कौन सी तारीख है? 31st December 2018. So we can say 3 days back we had sent cash of 20,000 to head office. हम कौन है? ब्रांच. वो कौन है? हेड ऑफिस. ठीक है. But that was received by head office on 2nd January 2019. That means the cash was received next year. लेकिन हम आज जब रिकॉर्ड कर रहे हैं 31st दिसंबर को, तब तो हमें पता नहीं कि उनको मिली कि नहीं मिली है. मतलब उनको नेक्स्ट ईयर मिलने वाली है, बट वी नो फॉर श्योर दैट दे हैव नॉट रिसीव्ड द कैश. ठीक है. तो जब मैंने उनको भेजा था कैश, तो कौन सी एंट्री करी होगी? व्हेन वी सेंट कैश टू हेड ऑफिस, व्हाट एंट्री वी मस्ट हैव पास्ड? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश. करेक्ट.
ये एंट्री कब पास करी होगी मैंने? 28 दिसंबर को, राइट? और आज मैं ये जब एंट्री, मैं देख रहा हूं कि एंट्री की कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब कि उनको कैश मिली ही नहीं है अभी तक, कैश इज इन ट्रांजिट, ठीक है? तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू रिकॉर्ड दिस कैश इन माय बुक्स, बट मैं उसको क्या बोलूंगा? कैश इन ट्रांजिट, ठीक है? और कैश गया ही नहीं है क्योंकि उनको कैश मिला ही नहीं है, कैश इज इन ट्रांजिट, दे आर स्टिल नॉट इन रिसीट ऑफ द कैश। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैश इन ट्रांजिट को आई हैव टू शो इट एज एन एसेट ऑन द इन द बैलेंस शीट, राइट? तो ये जो कैश है दैट आई विल हैव टू रिकॉर्ड एज कैश इन ट्रांजिट इन द बैलेंस शीट, राइट? एंड हेड ऑफिस को डेबिट नहीं कर सकते बिकॉज हेड ऑफिस हैज नॉट रिसीव्ड द कैश। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दूसरी इफेक्ट क्या करनी पड़ेगी मुझे? हेड ऑफिस को क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज दे आर स्टिल नॉट इन रिसीट ऑफ द कैश। तो अभी भी वो मेरे क्रेडिटर ही हैं, दे आर नॉट रिसीवर ऑफ द कैश। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये कैश इन ट्रांजिट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा बैलेंस शीट में ऑन द असेट साइड, और हेड ऑफिस में क्रेडिट करना पड़ेगा एज कैश इन ट्रांजिट, क्योंकि उनको कैश मिला नहीं है तो मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा उनको। जो पहले मैंने डेबिट दिया था मुझे उनको अब क्रेडिट देना पड़ेगा बिकॉज एज ऑफ नाउ द ट्रांजेक्शन इज सेड नॉट टू हैव टेकन प्लेस, ठीक है? और कितनी कैश इन ट्रांजिट है? 20,000, करेक्ट? तो चलो उसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूं लाइक दिस। सबसे पहले तो दैट विल कंटिन्यू टू बी शोन एज कैश इन ट्रांजिट इन अवर बैलेंस शीट। तो मैं उसको रिकॉर्ड करता हूं बैलेंस शीट में यहां पे, और यहां पे कैश इन ट्रांजिट। यू कैन ऑल्सो राइट रेमिटेंस इन ट्रांजिट, ठीक है? तो कैश इन ट्रांजिट इज 20,000 और हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देंगे यहां पे, और यहां पे लिखेंगे बाय कैश इन ट्रांजिट 20,000, ठीक है? दैट्स इट, नाउ वी आर थ्रू विद द सम। पूरा सम हमने फिनिश कर दिया। सो चलो एक के बाद एक सारे अकाउंट्स बंद करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करते हैं एंड लेट अस ड्रॉ ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पे टोटल आता है 3,40,000 और लेट्स पुट द सेम टोटल हियर 3,40,000, और आपको यहां पे मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहां पे हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट? लेट्स चेक इट। 3,40,000 माइनस 2,00,000 माइनस 30,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है यहाँ पे 1,10,000। The same will be transferred to profit and loss account which is just there below the trading account। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अमाउंट है 1,10,000। ऑलराइट, नाउ लेट अस टोटल दिस अप। टोटल आता है क्रेडिट साइड का यहाँ पे 1,16,000, विच साइड इज हायर? ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड इज हायर, सो 1,16,000, और सारे डेबिट आइटम्स उसमें से माइनस कर दो। 1,16,000 माइनस 25,000 माइनस 40,000 माइनस 17,000 माइनस 4,000, सो नेट प्रॉफिट आएगा 30,000। सो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 30,000। तो यहां पे हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, राइट? एंड दिस नेट प्रॉफिट ऑलवेज बिलोंग्स टू द ओनर, एंड हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस? इट इज एक्चुअली हेड ऑफिस। तो ये प्रॉफिट कहां जाएगा? हेड ऑफिस में क्रेडिट। तो यहां पे हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश प्रॉफिट, और प्रॉफिट आ रहा है 30,000। चलो हेड ऑफिस की भी टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1,09,000 प्लस 4,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, तो हेड ऑफिस की बैलेंस आती है 1,63,000। तो प्लीज पुट द टोटल हियर 1,63,000, 1,63,000। Put the same total on the debit side also because there is not a single debit item here,
So this itself will be the balance of head office account, which is just like the balance of capital account. ये उसका balance है, and this will carry forward to balance sheet. So what will I write here? To balance carried over to balance sheet. Balance carried over to balance sheet. तो जहां पे पहले आप कैपिटल बताते थे, वहीं उसी जगह पर, ठीक उसी जगह पर हम हेड ऑफिस की बैलेंस बताएंगे बैलेंस शीट में. तो बैलेंस शीट में यहां पे बताएंगे हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट, और कितनी आई बैलेंस 163, या बैलेंस आती है 1,63,000. चलो टोटल कर दो सारा, 1,63,000 प्लस 45,000, तो टोटल आएगा 2,08,000. यहां पे बैलेंस शीट का टोटल आता है 2,08,000. एंड लेट्स टोटल अप द असेट साइड आल्सो. 50,000 plus 80,000 plus 18,000 plus 40,000 plus 20,000. So of course the total is 2,08,000. So friends, this is how you are supposed to solve a full length example on independent branch from branch accounts. Thank you. Now let us solve some MCQs from the same question paper. Look at the question paper. This is about joint venture. These are the MCQs on joint venture. Let us look at them. Number one, in which of the following businesses joint venture is possible? Right? So joint venture कहाँ possible है? तो याद रखना कि ये टेम्पररी पार्टनरशिप है. इट इज अ शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप. तो आपको पहले से पता होगा, यू हैव अ फेयर आइडिया कि एट व्हाट पॉइंट ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी. राइट? तो अब देखो, नाउ चेक आउट ऑल द ऑप्शंस और देखो कि कहां पे ये ऐसा लगता है कि ये टेम्पररी पार्टनरशिप है. वो एलिमेंट जरूरी है. ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली न्यूज़पेपर, तो ये तो इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, राइट? इट्स एन ऑनगोइंग बिजनेस. तो once people start distributing newspapers, normally it is it is going to go on. इसमें कोई टेम्पररी रेस्ट नहीं है. ऐसा नहीं कि ये पॉइंट पर खत्म हो जाएगा. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली न्यूज़पेपर इज नॉट अ टेम्पररी पार्टनरशिप, राइट? दैट बिजनेस इज गोइंग टू गो ऑन इनडेफिनेटली, ठीक है, इन द फोर्सेबल फ्यूचर. तो यहां पे जॉइंट वेंचर का एलिमेंट नहीं है. नाउ लुक एट द सेकेंड ऑप्शन, फास्ट फूड स्टॉल एट अ फेयर. तो कहीं पे मेला लगा हो और वहां पे फास्ट फूड स्टॉल है, तो उनका बिजनेस कैसा है? इट्स अ टेम्पररी बिजनेस. when the fair is set up, तो उसी वक्त आपका जो स्टॉल है फास्ट फूड का वो सेटअप किया जाता है. एंड द मोमेंट ये फेयर वाइंड अप होता है, तो उसी के साथ आपकी जो जॉइंट है, आपका जो फास्ट फूड स्टॉल है, वो भी आपके साथ उसको आपको वाइंड अप करना पड़ता है. तो दिस इज अ फेयरली टेम्पररी बिजनेस. और उसका जो एंड है, उसका वाइंडिंग अप है, वो आपको पहले से पता है कि जैसे ही फेयर जाएगा, ये जो इटरी है वो भी चली जाएगी. तो दिस इज द राइट ऑप्शन. जॉइंट वेंचर इज पॉसिबल इन केस ऑफ फास्ट फूड बिजनेस एट अ, नॉट एज अ बिजनेस बट फास्ट फूड स्टॉल एट अ फेयर. लेकिन अगर फास्ट फूड का बिजनेस है तो उसमें जॉइंट वेंचर नहीं होगा, राइट? क्योंकि वो फास्ट फूड की जो इटरी वो तो चलती रहेगी सालों साल नॉर्मली, तो उसमें जॉइंट वेंचर नहीं होगा. लेकिन अगर एक स्टॉल बनाया फेयर में, तो वो जॉइंट वेंचर है. मेडिकल शॉप, ऑफ कोर्स इट्स अ बिजनेस दैट गोज ऑन इंडेफिनेटली, तो उसमें भी जॉइंट वेंचर नहीं होगा. ये शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप नहीं है, तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है अगर है तो. एंड नन ऑफ दिस टू आर सर्टेनली नॉट द वैलिड ऑप्शन. हमने सब कुछ चेकआउट किया, तो द राइट ऑप्शन हियर इज बी. ठीक है? फास्ट फूड स्टॉल एट अ फेयर. क्लियर? Now see, look at the second one. X and Y entered into a joint venture. दोनों पार्टनर्स हैं X and Y, and X gives 60,000 to Y. X ने 60,000 दिए Y को. In which account the transaction will be recorded in the books of X? तो कौन से बुक्स में? तो X is the giver and who is the receiver? Y. तो when Y receives money, automatically what will X record? Y's account debit to cash account और bank account. ठीक है? तो Y का account debit होगा. So then what will you do? You will have to record that transaction in the books of Y. So B is the right option. Joint venture account में record नहीं होगा because this is the transaction between two partners. So joint venture account is nowhere in the picture. It is nowhere in the frame. It is certainly not an expense account. ये expense account ऐसा कुछ है नहीं joint venture में. So it is not recorded in the expense account. And B is the right answer. It will be recorded in the Y's account. So that is the right option.
लुक एट द थर्ड वन, जॉइंट वेंचर अकाउंट इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स, तो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है, कि जॉइंट वेंचर अकाउंट इज अ perfect combination of trading and profit loss account. All the purchases on the debit side, expense on debit side, profit again will show on the debit side, and on the credit side of joint venture account, what do we show? Sales or goods withdrawal taken away for personal use. So it is exactly like trading and profit loss account. So B is the right option. Not just trading account, not just profit and loss account, but both of them. So it is a combination of trading and profit and loss account. Similar to balance sheet? Certainly not. So B is the right option. Correct? Let's take up the fourth one. Bonds of 10 lakhs are received against work done in a joint venture. Joint venture में कभी कभी फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टर्स हो या जिसमें फी आपने दी है एंड इन ल्यू ऑफ कैश आपको फी में मिला है, योर इनकम इज इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक. आपको चेक नहीं मिला, कैश नहीं मिला, लेकिन इनकम के तौर पर आपको क्या मिला है? बॉन्ड्स मिले 10 lakhs के. करेक्ट? तो ये बॉन्ड्स, व्हेन यू आर सेलिंग द बॉन्ड्स फॉर 7 lakhs, देन विच अमाउंट इज व्हाट अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ जॉइंट वेंचर. आप जानते हो कि जॉइंट वेंचर अकाउंट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है, तो इसमें आपको जो भी लॉस होता है दैट लॉस विल बी डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट. तो यहां पे कितना लॉस हुआ? आपको बॉन्ड्स मिले 10 लाख के and the bonds fetch you only 7 lakhs in the market. तो ये bonds को जब आपने कैश में कन्वर्ट किया तो what was the loss? आपका लॉस कितना हुआ? 3 lakhs. And this loss will be borne by the joint venture account and loss will be debited to joint venture account. तो आप joint venture account को डेबिट करोगे 3 लाख से. 3 lakhs. That is nothing but that is with the loss arising from the sale of bonds. Clear? So B is the right option. Look at the last one. Which act applies to the joint venture business? Joint venture business is an informal business. So normally there is no particular law or no particular act that is applicable in case of joint venture account. So nahi Companies Act, certainly not Partnership Act and Cooperatives. ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि joint venture account में के लिए कोई भी particular law या कोई भी particular set of rules applicable नहीं है. So this is all. These are all the 5 MCQs that were asked in the Gujarat University 2019 question paper. That's it for today. Watch out for more such videos. I will solve more questions from other university question papers. Till then, keep learning. Enjoy. Bye-bye.